नहीं, इट इज अंडर प्राइस्ड। अभी तक नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट $50 to $70 पर स्क्वायर फीट पे बिक रहा है। अभी $70 to $150 पर स्क्वायर फीट पे बिक रहा है। कुणाल सर, आपकी डेफिनेशन स्मार्ट सिटी की, एंड यू आर राइट नाउ emerging in an area which is Greater Noida. We can call people, some call it Noida Extension, कोई Greater Noida West कह रहा है। ये भी एक अपकमिंग स्मार्ट सिटी के वैसे देख रहे हैं, बहुत सारे लोग अब वहाँ पे आने वाले समय में मूव कर रहे हैं, मूव कर चुके हैं। आपका जो फैक्टर है स्मार्ट सिटी का? Yes, we as a developer are pretty ready. Whosoever sitting here, we are pretty ready as a developer for smarter homes. Because how the energy efficiency has to take place, we are ready for it. How the digitization has to take place, how the electricity bills can be reduced, we are exactly ready to do that. And moreover, I want to answer your second question, which Aditya sir has elaborated, that there are some places in Noida where we can go by walk and by cycle as well. So there are cycle tracks, but the security for the cycle tracks needs to be taken care of. Then only you can go by cycle and by walking in Noida. Sector 137, lot of more than 20,000 residents are there. Aditya sir is doing one product there. So the offices are coming there. More than 20 million square feet is coming there. We are developing more than 2.4 million square feet there. So people can walk and go to their office. Right. How to save the energy in the office as well? You are only talking about the home, but the maximum energy is consumed by the corporates as well. Right. And we have to save the energy there as well. Right. So the AQI level, we cannot contribute more towards the AQI level which is there in the atmosphere, but we can contribute towards the AQI level which we build. Right. That's we are taking care. So that's how we are pretty much sound, and we exactly know our business pretty well as a pro like Tiger Woods, that Right. what to be done as a developer. जब आप एरिया चुनते हैं, क्या बिल्डर्स, क्या रियल एस्टेट डेवलपर्स अपने माइंड में एरिया उस हिसाब से चुनते हैं कि किसी को भी कभी भी इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी और आने वाले समय में इंडिया इज़ द यंगेस्ट कंट्री, तो ऑफ कोर्स स्कूल्स की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। कुणाल सर, आपका इसके ऊपर क्या कहना है? यू वांटेड टू से समथिंग? Yeah, just to add on this, that we have always seen Noida growing because I have done my schooling in Noida only. So I am in Noida from 1985, 1986. So whenever some of the areas develop a lot, then the rate and the economy always develop in a great fashion. Right. And पहले लोग ईस्ट दिल्ली मयूर विहार रहते थे, या जो मयूर विहार रहता था, या जो ईस्ट दिल्ली में और जगहों पे रहता था, जिसके पास पैसे कम होते थे वो इंदिरापुरम वैशाली चला जाता था, जिसके पास काम करने की ज़ील होती थी या सोच बड़ी होती थी, Right. वो नोएडा आ जाता। Right. सेम आज भी ऐसे ही हो रहा है कि कुछ लोग NH24 में मूव कर रहे हैं, कुछ लोग और सिटीज़ में मूव कर रहे हैं, क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट इज़ द फर्स्ट डेस्टिनेशन फॉर 2-tier city, 3-tier city Right. from all over the UP, because second largest economic contributor is Uttar Pradesh and first Right. contributor is Noida towards the Uttar Pradesh economy. So ऐसा ही अभी आपको देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे थोड़ा सा लोगों को शिफ्ट होना पड़ेगा अपनी जगहों पे। सर, वो हब मिडिल क्लास के लिए, अपर मिडिल क्लास के लिए, इमर्जिंग मिडिल क्लास के लिए अब सबके लिए घर बन रहे हैं, सबके लिए घर बन रहे हैं। अब शायद उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस बन गई है। पहले से भी थी, ऐसा नहीं है कि आज बनी है, पहले भी थी। सेक्टर 137 बना था, तब मैंने ये सुना कि इसके बाद तो कुछ आएगा ही नहीं, फिर 144 आ गया, बॉटनिया आ गया, है ना, 150 आ गया। तो ऐसे ही अभी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सबने कहा कि जब हम सेक्टर 1 में कर रहे थे तो कभी कुछ आएगा ही नहीं, अब सेक्टर 12 आ गया, है ना। वहाँ पे भी अगर आप सेक्टर 12 में टोटल नंबर ऑफ हाउसेज देखोगे तो 8,000 10,000 घर बन रहे हैं। इसके बाद कौन से सेक्टर्स आएंगे? अभी पूरा एक्सप्रेसवे आपके पास पड़ा है, सर, अभी बहुत पूरा सारे ग्रेटर नोएडा potential वेस्ट पड़ा है, अभी पूरा वी आर ब्लेस्ड दैट वी आर इन नोएडा, वी आर ब्लेस्ड as developers, as human beings as well, because as rightly said Mr. Kapoor, we have traveled the world. This is one of the best places to live in. With whole infrastructure rooted it very well. अभी तक नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट $50 to $70 पर स्क्वायर फीट पे बिक रहा था, अभी $70 to $150 पर स्क्वायर फीट पे बिक रहा है। सर, इसीलिए मैंने पूरे वर्ल्ड में नहीं, इट इज अंडर प्राइस्ड।
अभी भी अंडर प्राइस Yes, आपकी नजर में? आप कहीं भी पूरे वर्ल्ड में चेक करें कि 200 से $250 पर स्क्वायर फीट से कम कहाँ अवेलेबिलिटी है, पहले वो चेक करें। जहाँ ऐसी सिटी डेवलप्ड हो, जहाँ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, जहाँ आपको रोजगारी मिल रही हो, जहाँ इंडस्ट्री, हर इंसान के लिए रोजगारी है यहाँ। 10,000 रुपये से लेके 5 लाख तक आदमी भी यहाँ काम कर सकता है, रह सकता है। सो वहाँ पे अभी भी अंडर वैल्यूड है हम ये वाले अच्छे दिन आने का इंतजार करेंगे। नहीं, वो आते जा रहे हैं, आप बस ऐसे ही शोज करते रहिए, ये आते जा रहे हैं। मिस्टर कुणाल भल्ला, फाउंडर CRC, थैंक यू so much for sharing your thoughts, sir.